and the people there, seniors वगैरह सभी captains, everyone, faculties, from somewhere alone to a different place, जो चाहिए तुमको, you get everything there. और बहुत सारी आती है and placement हो भी रहा है. बहुत सारे मेरे seniors हैं who are placed and they are sailing also safely on board and yes. So hello everyone, welcome back to my channel. This is your Sailor Girl Cadet Prerna Ghosh and जैसा मैं बोली थी कि तुम लोगों का जो भी doubts है, please let us know in the comment section. So we will try to help you out as soon as possible. So we are back with the video of part 2, जिसमें हम लोग IMU नेवी मुंबई के बारे में यानी TS चाणक्य के बारे में जो तुम्हारे doubts आए थे हमारे पास comment section के थ्रू उसको clear out करेंगे. Okay, so we will start with the first comment itself. पहला कमेंट जो आया है, IMU का सेकंड लिस्ट कब आएगा? नहीं आएगा क्या इस साल? तो अभी तक तो फर्स्ट लिस्ट का एडमिशन कंप्लीट हो चुका है, तो थोड़ा सा वेट करो. होपफुली देयर आर हाई नंबर ऑफ चांसेस दैट दे विल रिलीज द सेकंड लिस्ट. थोड़ा सा टाइम हो लग रहा है, कुछ डिले के वजह से रीजंस हो सकते हैं, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ओके, नेक्स्ट वी हैव दिशा. दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. मैम, हॉस्टल फीस अलग से पे करना पड़ता है कि सेमेस्टर फीस में ही इंक्लूडेड रहता है? वेल, सेमेस्टर फीस जो रहता है 2,75,000 फॉर अ टोटल ईयर. इट इज पूरा ईयरली फीस, नॉट सेमेस्टर, तो उसमें ही इंक्लूडेड रहता है सब कुछ. ओके, सो अलग से, इसका मतलब अलग से तुमको हॉस्टल फीस कुछ पे करना नहीं पड़ेगा. एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन योर सेमेस्टर फीस. Okay, the next question that I have, ma'am, will I be able to get a BTech seat in IMU campus? 1647 rank है, general category, preference list, IMU कोलकाता, IMU चेन्नई, IMU मुंबई, IMU विशाखापट्टनम. Yes, there are high number of chances कि तुमको सीट मिल जाएगा because you do have a very good rank. Okay, so let's wait for the next list and let's hope for the best. दीदी, सेम एज BSc, क्या बीटेक भी एवरेज स्टूडेंट क्लियर कर लेगा इन IMU कोलकाता और मुंबई? मैं स्टडी कर रहा हूँ. बिल्कुल, इफ इवन इफ यू आर एवरेज स्टूडेंट, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट्स एंड इफ यू प्रेजेंट योर आंसर्स प्रॉपर्ली. क्योंकि देखो, अभी जो तुम एग्जाम देने वाले हो, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू ओरल क्वेश्चंस, राइट? नोबडी इज गोइंग टू टेस्ट हाउ मच यू एक्चुअली नो. तो ऐसे बहुत लोग भी हैं जो पूरा रट लेते हैं आंसर अच्छे से एंड दे राइट इट वेल, दे आल्सो पास. सो तुम कैसा भी स्टूडेंट हो, इफ यू स्टडी हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, you will obviously pass. The way of writing answer is all that matters at the end. True. Okay, दिशा, next one is girls के लिए कितना फीस लगती है BSc करने के लिए? तो बेसिकली गर्ल्स और बॉयज के लिए सेम ही फीस लगता है, 2,75,000 फॉर अ टोटल ईयर. एंड फॉर गर्ल्स यू गेट scholarships. Okay, so if you clear all of your subjects, तुम्हारा कोई KT नहीं है, तो फिर MTI की तरफ से 50K का एक scholarship मिलेगा that you get as a student studying in a college. So regarding the scholarship for all the girls, I know you guys have a lot of doubts, so we will discuss about this in a separate video. तो इसके बारे में हम लोग पूरा scholarship का details discuss करेंगे. Now the next comment that I have is about, please tell us about the IMU Mumbai Port campus hostel life as well as other campus life. See, I have lived in IMU Kolkata and it was the best phase of my life. Okay, मैं exaggerate बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, that's the truth. But Mumbai Port campus, okay, I'll try from my end if I can get in touch with anyone who is currently in Mumbai Port campus. So उनके तरफ से तुम सुन के अपना पूरा doubts clear कर सको, ठीक है? Next I have the question. Oh, actually it's not a question. Actually it's a very good fact that he has stated. The main problem is that the guys are not studying and hoping for placement. How it's gonna happen then? So true. Thank you so much. I don't know your name. Your account name is God's favorite child. Okay, so actually, you are actually, correct. Actually that's very true. अगर तुम पढ़ाई लिखाई करोगे नहीं तो don't hope for a placement, man. Okay. मतलब KT आएगा तो फिर there's no chance कि तुमको placement के लिए बैठाएगा. KT clear कर लोगे, you will get a chance to sit for placement exams. Okay. Next one question that we have, and this is about a lot of students, that whether when a candidate is having 60 or 65% of PCM, will it affect their placement? So Disha, what happens in TS Chanakya? Please tell me. So if someone is having 60 to 65% of range of PCM, how it will affect their placement? There are cadets who have 60 to 65%. So basically when you go to college, there are exams conducted every semester. Semester exam plays the vital role. तुम्हारा सेमेस्टर में कितना आ रहा है, CGPA कितना बन रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट लिस्ट इज मेड, ताकि तुमको लाइक प्लेसमेंट के लिए फॉर इंटरव्यूज दे कैन अलॉट यू. तो तुम्हारा जितना भी PCM परसेंटेज हो, एक बार कंपनी के साथ रीचेक कर लेते हैं. बट इफ यू वर्क हार्ड एनफ आफ्टर कमिंग टू कॉलेज एंड यू गेट अ गुड रैंक इन द लिस्ट, then of course your chance is higher than a guy who has scored maybe 80% in his class 12 but is 180 के batch में he's 179 or 178 kind of like that. Okay, so okay, for campus placement you don't have to worry much about the PCM because I have not seen any single company in the past 4 years of my life जो कैंपसिंग के टाइम पे आके ये पूछता है कि उस बच्चे का PCM कितना था. कंपनीज मेनली पूछते हैं तुम्हारा कोई सप्ली है या नहीं, डू यू हैव एनी अरियर और एनी बैक और नॉट, what is your CGPA, what is your rank in the batch, and they check about the co-curriculum activities before making you sit for the placement. ठीक है, तुम्हें इंटरव्यू पे बिठाने से पहले तक ये सारी चीजें मॉनिटर किया जाता है. This co-curriculum activity that you said, after coming to the campus you have got so many things, basketball, volleyball, football, cricket, everything you have, kabaddi, सब कुछ होता है. तो वो देखेंगे कि कौन कौन से कमेटी के साथ तुम ज्वाइन हो,
are you into something except for studying? So that what tests and gets you a placement. That's very true. Because we have seen people, I myself, I was also into a lot of things, and that helped me to gain a lot of exposure. ठीक है, college life में you have the option to just have a test and trial and error for a different lot of Everything, things. yes. कि मैं मुझे ये try करना है, मुझे ये खेल खेलना है, मुझे कभी टाइम नहीं मिला लाइफ में गेम्स के लिए, बट इन कॉलेज यू हैव It's the दैट first time to डेडिकेटेड everything and you can do anything and everything there. Exactly. Like तुम खुद को represent yourself in front of the society. You can try out everything and anything. उधर ही तुम embarrass होने का chance है तुम्हारा, ताकि बाकी बाद में जाके तुम mistake ना करो. Thank you so much, Disha, for making it so much clear. The next the comment that I have from Pushkar is, thanks for making it. I'll be joining TS Chanakya from 1st of August. I needed to know more about it, and this video I got enough info. Again, thank you. So thank you, Pushkar. Thank you so much for encouraging our work. And ऐसे ही videos के लिए we will try our level best. Okay. Next, अच्छा इतना बता दो कि open board वालों को placement में problem होता है क्या? So Abhishek Gupta is asking कि open board से अगर कोई है जो IMU TS चाणक्य में पढ़ाई करने वाला है या जाने वाला है, क्या उसको प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होगा? See, according to me, अभी तक तो like it depends on your PCM. थोड़ा बहुत PCM पे डिपेंड करता है. And as I said कि semester exams, that's the two thing that they see. And प्रेरणा दीदी ने भी अभी बोला कि वो लोग पूछते हैं तुम्हारा करिकुलम क्या है, करिकुलम को करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, एंड CGPA क्या है तुम्हारा केटी है कि नहीं कोई भी सेमेस्टर में. दैट्स व्हाट दे आस्क. और लड़कों का वैसे भी प्लेसमेंट होना फर्स्ट ईयर से स्टार्ट नहीं होता, सेकंड ईयर के थर्ड फोर्थ सेम से स्टार्ट हो जाता है उनका प्लेसमेंट का. तो if he's a guy, then yes, there's no problem in it. See, for open board students, generally I have not seen any company जो आके ये पूछता है कि मुझे CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स चाहिए, मुझे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स चाहिए या मुझे ओपन बोर्ड के स्टूडेंट्स चाहिए. जब उनके पास लिस्ट जाता है, yes, they do have your data कि तुमने कहाँ से अपना 12th किया है, कहाँ से अपना 11th अपना क्लास 12th पास किया है, बट इसके बेसिस पे तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया जाता कि सिर्फ ऑन द बेसिस कि तुम ओपन बोर्ड से हो तो तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे. ऐसा नहीं होता है. दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क इन यूनिवर्सिटी. ओके, तो ये चीज का डर मत रखो अपने अंदर कि तुम ओपन बोर्ड से हो तो तुम्हारे प्लेसमेंट में दिक्कत होगा. ओके, नाउ अगेन वी हैव अ कमेंट, मैम प्लीज मेक अ वीडियो ऑन मेरी मुंबई कैंपस टूर प्लीज. ओके, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट. आई विल रीच आउट टू माय फ्रेंड्स. ओके, next we have, please ma'am ask her about the eligibility for placements, like which things are most important to get placed in top companies. So Disha, as we have already discussed, just make it crisp and just tell them the points. What are the things that companies to look for? The things are you physically and mentally stable to be in this field? तो वो देखते हैं. And they ask you about like you are in college, so rules of road for BSc students, of course, rules of road, ROR के कुछ law तुमको ये पूछेंगे and rules पूछेंगे, so you have to answer them accordingly because already like first year बीत चुका है, तो you must know those things. अपार्ट फ्रॉम दैट, और एलिजिबिलिटी के लिए तो बस हम लोग बता ही दी ऑलरेडी कि तुम्हारा पीसीएम से भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा सीजीपीए क्या है, तुम्हारा रैंक क्या है, तुम्हारे को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में पूछा है. थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं. सिचुएशनल अवेयरनेस कितना है तुम में एज अ पर्सन, दे वांट टू चेक दैट थिंग एंड दैट्स इट. Okay, perfect. Now someone has commented, reality is about out of 180, only 80 to 90 students are placed in IMU Navi Mumbai. Now someone has replied, most of them get placed after passing out. My cousin is there. Now someone again has replied, जो पढ़ेगा उसका कंफर्म है, हो जाएगा सिंपल. Now for example, अगर 180 का बैच है, उसमें से सिर्फ 80 से 90 लोग ऑल क्लियर रहते हैं हर सेमेस्टर में, वो ऑल क्लियर है, उनका कोई अरियर नहीं है, कोई केटी नहीं है, तो क्या लगता है बाकी 100 बच्चों का किसी का 1, किसी का 2, किसी का 12, किसी का 13 केटी लग चुका है, तो क्या लगता है तुमको कंपनी किसको प्लेस करेगा? So now obviously it's a very very common thing. मुझे नहीं पता इन लोगों को क्यों समझ नहीं आता, कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ बच्चों को, कि अगर तुम्हारा सप्ली है तुम्हें तब तक कॉलेज प्लेसमेंट में नहीं बिठा सकता है. प्लीज कीप इट वेरी क्लियर इन योर हेड. तो इसके लिए पढ़ाई करने के लिए बोला जाता है. कंपनी कॉलेज विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू सिट फॉर द प्लेसमेंट, बट इट्स ऑन यू टू क्लियर द प्लेसमेंट एंड इट्स ऑन यू टू मेक योरसेल्फ एलिजिबल फॉर सिटिंग फॉर द प्लेसमेंट. अगर तुम एलिजिबल नहीं हो, कॉलेज बहुत लोग है भाई उनके पास, वो क्यों तुम्हारे लिए अलग से ध्यान देंगे? Okay, please keep these things in your mind before joining any campus. Now they have asked about again IMU Chennai BTech placement, please. Okay, I ensure you guys IMU Chennai के regarding बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाला है मेरे चैनल पे. So for that, if you haven't subscribed yet to the channel, do subscribe it now. Now the next question is, my rank is 21,000. What should I do? 21,000. So now please tell me what's your PCM percentage. तुम्हारा बिना PCM जाने मैं कुछ गाइड नहीं कर सकती हूँ, and for you I would suggest कि तुम एक बार फेब बैच के लिए ट्राई ले सकते हो, but I'm not pretty sure because of the higher rank. So better you prepare for next year. Okay. Now someone has said, I think she was in yellow batch in IMU May 2025. Yes, she was in the team yellow. Okay, not yellow batch, team yellow. जो discussion sessions और interviews के लिए different teams रहते हैं, she was in yellow batch. I mean yellow team. Amarjit Kumar. Amarjit was also there in IMU Mate, team yellow. Okay. Now, next coming to the question, दी मेरा तुलानी में बीटेक में एडमिशन कंफर्म हो गया, फी पे कर दिया, 17 जुलाई को ज्वाइन करना है.
मेरा तो कैप्टन बनने का मन था, नॉट अप्लाइड फॉर डीएनएस ऑगस्ट बैच बिकॉज माई एज इज 16 years 10 months. That's थोड़ा सा और टाइम ले लेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी जल्दी नहीं है. बट इंजीनियरिंग में भी मजा है. शुड आई गो फॉर डीएनएस वेब बैच व्हाइल आई एम इन टीएमआई? आपकी कोई एडवाइस? सी दिस इज अ वेरी बैड डिसीजन बिकॉज माइंड को स्टेबल करना सीखो. इफ यू हैव अप्लाइड फॉर टीएमआई, इफ यू हैव पेड द फीस, तो इतना लाखों रुपए क्यों बर्बाद करना है? बीटेक इज अ गुड फील्ड. इफ यू नो, इफ यू वांट टू वर्क हार्ड, इफ यू वांट टू लर्न अबाउट मशीनरीज, भाई बीटेक बहुत अच्छी चीज. मैं तो सबको बोलती हूँ बीटेक करो यार. और तुम लोग हो कि बीटेक भर्ती होने के बाद बोल रहे हो कि डीएनएस के लिए. डोंट डू दैट. ओके, you have made your mind because companies will ask you what were you doing. You will say sir I was there in TMI. Then the company will ask that. Then you don't have a stability in your mind. तो तुमको हमारे कंपनी में लेके क्या करेंगे हम लोग? 2 दिन बाद सोचोगे कि ये भी छोड़ देता है, ये भी कंपनी अच्छा नहीं है, दूसरे कंपनी में ट्राई करते हैं. ओके, डोंट डू दैट. मैम, व्हाट इज द प्लेसमेंट रेट ऑफ टीएस चाणक्य? well recently तो it's like if you have all clear then yes you are all good to go. तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा by the end of 3rd year if you're a boy cadet and by the end of like अभी जब the number of girls are increasing तो it is taking to 2nd year also. 2nd year में भी जाके लड़कियां प्लेस हो रही है because कंपनीज वैसे वैसे आ रही है. it's not that कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में ही सारे लड़कियां प्लेस हो जा रहे हैं because there are more number of girls increasing. It's increasing day by day. So accordingly if you have all clear then you are good to go for placements. Okay, now I have one question to my viewers. जिनको भी लग रहा है कि हाँ 180 में से सिर्फ 80 बच्चे 90 बच्चे प्लेस होते हैं, और जो लोग तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कैन यू जस्ट आस्क देम वन थिंग, कैन यू शेयर योर बैच रिपोर्ट? कितने लोग ऑल क्लियर हैं, कितने लोगों की कभी सप्ली नहीं लगी, और कितने लोगों की अभी तक सप्ली लगी हुई है, और कितने कंपनीज आए हैं? You will get to know the data all by yourself. अगर ऐसे मैंने situations के बारे में सुना है, देखा भी है, where the company came, they were asking for 40 cadets. ऐसे एक renowned college की मैं बात कर रही हूँ, they were asking, last year ही हुआ है, they were asking for 40 cadets. अब कॉलेज के पास because of any reason 40 ऑल क्लियर बच्चा है ही नहीं, तो फिर how will the company, college will make you sit for the placement? कॉलेज के पास जो ऑल क्लियर बच्चे हैं, मान लो 40 नहीं, उनके पास 30 ऑल क्लियर बच्चे हैं, और जो बाकी 10 या 20 ऑल क्लियर है वो ऑलरेडी प्लेस्ड है. अब जो ऑलरेडी प्लेस्ड है उनको तो वापस में प्लेसमेंट के लिए नहीं बिठा सकते ना. एंड कंपनी किसी भी हाल में अग्री नहीं कर रहा है इस बात से कि हाँ जिसका केटी लगा हुआ है, जिसका ईयर लगा हुआ है, उसका प्लेसमेंट करें. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर वाचिंग. एंड इफ यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ फॉर प्रिपरेशन, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है और मर्चेंट नेवी के बारे में प्रिपरेशन करनी है, सो वी हैव ऑल आवर बैचेस गोइंग ऑन. अभी तो जुलाई का बैच फुल हो चुका है. वी हैव क्लोज्ड द एडमिशन वे अर्लियर. अभी अगस्त बैच का एडमिशन शुरू हो चुका है. ग्रेटर नोएडा में भी एडमिशन शुरू हो चुका है एंड द क्लासेस विल बी ऑन वेरी सून. ग्रेटर नोएडा के लिए भी तुम एनरोल करना चाहते हो, प्लीज डू इट एज सून एज पॉसिबल. Thank you for watching, and for more such updates don't forget to hit the subscribe button. Till the time, stay safe, stay blessed. Bye bye.